Dear students, we'll have another lecture on protein synthesis in continuation with the transcription, and then it is translation. Translation is the process of synthesis of protein from messenger RNA, that is called as translation. Protein synthesis is an important process in the biological organisms. Without protein, no reaction can be completed in the eukaryotes. There is each and every enzyme is made up of protein, and proteins are made up of amino acids, and amino acids are being coordinated to combine to form a peptide bond by which proteins are synthesized. This is the function of messenger RNA, having the codons in the proteins that which amino acid will bind together to form that particular protein. So here we have overview of translation. Translation, that is synthesis of proteins from mRNA, is called a translation. Basically, the molecular biology states a central dogma that each DNA is forming messenger RNA by transcription, and then mRNA is going to produce proteins, that is given by F.S.C. Crick in 1951. That is a central dogma of molecular biology. Now, how proteins are synthesized? What are the different steps of protein synthesis? Will teach in this lecture. So be attentive to hear the e-lecture that how proteins are synthesized in the organisms. The pathway of protein synthesis is called as translation because the language of nucleotide sequence on the mRNA is translated into the language of amino acid sequence. जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि किसी भी प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलकर के होता है, और अमीनो अम्लों का निर्धारण करने का काम mRNA पर उपस्थित कोडोन्स का होता है, जो कि डीएनए के द्वारा mRNA के ऊपर संदेश के रूप में भेजे जाते हैं. The messenger RNA is translated from its 5 ends to the 3 ends, producing a protein synthesized from its amino terminal and to the carboxyl terminal end. The components required for translation. Translation के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है? उसके अंदर अमीनो अम्ल, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड tRNA synthetase, functioning component ribosomes, then protein factors, ATP, GTP as source of energy. These all are the components required for translation. The steps of protein synthesis are 3. The first stage, that is initiation, second is elongation, and third is termination. So initiation, elongation and termination, these are the different stages for the synthesis of proteins from mRNA, and it is further explained in the further slides. Initiation, और हम कह सकते हैं प्रारंभन, प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभन किस प्रकार से होता है? Initiation of the protein synthesis involve the assembly of the components of the translation system before the peptide bond formation occurs. These components include प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करने के लिए हमें क्या क्या असेंबली की आवश्यकता होती है. उसके अंदर 2 राइबोसोम की सब यूनिट, अगर यूकैरियोट है तो 60S and 40S चाहिए, और प्रोकैरियोट है तो इसमें 50S और 30S सब यूनिट चाहिए. मैसेंजर आरएनए, अमीनो एसिड tRNA specified by the codons in the message, GTP and the initiation factors. In prokaryotes there are 3 initiation factors called as IF1, 2, 3. These are the प्रारंभन कारक जिसको हम कहते हैं, वो 3 आवश्यकता पड़ती है, जबकि यूकैरियोट्स में लगभग ये 9 होते हैं. दैट इज ई फॉर यूकैरियोट्स एंड इनिशिएशन फैक्टर 1 to 9, दे आर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स. तो प्रारंभन के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम प्रोटीन के संश्लेषण का प्रारंभन करते हैं. राइबोसोम्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं, और इनके अंदर एक सब यूनिट बड़ी होती है, एक छोटी होती है. इसके पीछे जो एस लगा होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के रूप में होता है, जो कि स्वेडबर्ग के द्वारा दिया गया है, इसलिए स्वेडबर्ग वैल्यू भी कहते हैं इसको.
The S values are determined by the shape as well as the molecular mass. Their numerical value are not strictly additive. 50s and 30s unit together to form 70s because while they are combining, their Svedberg value comes to the some lower. So 50 और 30 मिला करके 80 होते हैं, लेकिन फिर भी जो बनने वाली असेंबली राइबोसोम की वो 70s ही होती है। यहाँ पर राइबोसोम की सब यूनिट को दिखाया गया है। ऊपर की तरफ बड़ी सब यूनिट दिखाई गई है, छोटी लाइट सब यूनिट दिखाई गई है, और नीचे की ओर हैवी सब यूनिट या बड़ी सब यूनिट दिखाई गई है। देन राइबोसोम के ऊपर दो साइट होती है, जिसे हम ए साइट, जिसको अमीनो एसिड साइट कहते हैं, और दूसरी पी साइट होती है, जिसे हम पेप्टिडाइल साइट कहते हैं। दीज आर द टू बाइंडिंग साइट्स फॉर टीआरएनए मॉलिक्यूल्स, जो कि अमीनो अम्ल को लेकर के आज यहाँ पर राइबोसोम की साइट पर आते हैं। और ए साइट बाइंडिंग is incoming amino acid tRNA is directed by the codon, and this codon specifies the next amino acid to be added to the growing peptide chain. The P side codon is occupied by the peptidyl tRNA. This tRNA carries the chain of amino acids that has already been synthesized. So an E site is also there, that is occupied by the empty tRNA that is about to exit the ribosome. So राइबोसोम के ऊपर ये विभिन्न प्रकार की साइट्स होती है जो कि ये डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। यहाँ पर ये साइट दिखाई गई है, ये एग्जिट साइट है, यहाँ पर पेप्टिडाइल साइट और ये अमीनो एसिड साइट है। तो कोई भी टीआरएनए पहले अमीनो एसिड साइट से एंटर करता है और फिर ये पेप्टिडाइल साइट पर आता है और फाइनली एग्जिट साइट में आता है, फिर बाहर निकल जाता है। तो और इस प्रकार से ये एमआरएनए की चेन बनती जाती है। एमआरएनए उसके ऊपर मूव करता जाता है और प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। तो ये 30s यूनिट है, ऊपर की तरफ 50s यूनिट दिखा रखी है, उल्टा दिखाया गया है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये बीच में ग्रुप होती है जिसके अंदर एमआरएनए लगा रहता है, और एमआरएनए के ऊपर कोडोन के रीड करते जाने से पॉलीपेप्टाइड की चेन का निर्माण होता है। तो इन दोनों चित्रों के अंदर हमें किस प्रकार से राइबोसोम के ऊपर अमीनो एसिड साइट और पेप्टिडाइल साइट लगी रहती है, और अमीनो एसिड साइट पे और पेप्टाइल साइट पे ए साइट और पी साइट जिसको हम कहते हैं, इस पर किस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, वो इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड बन रही है और ये एमआरएनए है। यहाँ पर ये एग्जिट साइट हो गई, ये पेप्टिडाइल साइट हो गई, ये अमीनो एसिड साइट हो गई, और यहाँ पर ये एमआरएनए बाइंड होता है इसके बीच में, दोनों सब यूनिट्स के बीच में। ट्रांसफर आरएनए, जैसे कि हमने आरएनए के टाइप्स में पढ़ा था, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है अमीनो अम्ल को साइटोप्लाज्म से खोज करके और राइबोसोम की प्रोटीन सिंथेसिस साइट के ऊपर लेकर के आते हैं, और अमीनो अम्ल के ऊपर एक एंटीकोडोन होता है। एंटीकोडोन के आधार पर उसकी द्वारा उस अमीनो एसिड को पहचाना जाता है, और पहचान करके उस अमीनो एसिड को जो है ये अमीनो एसिड भुजा के ऊपर लगा करके और इसको लेकर के ये राइबोसोम की साइट के ऊपर पहुंचता है। यहाँ पर ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, क्लोरलीफ मॉडल कहते हैं इसको, जिसके अंदर एक यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, यहाँ पर एंटीकोडोन लूप है, यहाँ पर एंटीकोडोन लगा रहता है, और ये 3' भुजा होती है जिसको अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट कहते हैं। यहाँ पर अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती है, बाकी इसमें DHU लूप होता है, एक T साइज C लूप होता है, और यहाँ पर एक मिनी लूप होता है। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। देन इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले 30s सब यूनिट्स जो है वो इनिशिएशन फैक्टर IF3 से बाइंड करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये IF फैक्टर है, उससे बाइंड किया इसने, और IF फैक्टर के द्वारा IF3 और 30s यूनिट आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये इनिशिएशन की शुरुआत होती है। इसके बाद में द स्मॉल सब यूनिट एंड IF3 फैक्टर बाइंड्स टू दी मैसेंजर आरएनए। यहाँ पर ये जो इनिशिएशन फैक्टर बन रहा है, यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए से जुड़ जाता है। तो IF3 30s सब यूनिट इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव सीन, एंड then messenger RNA get attached to the this initiation factor. In next slide we'll see that the tRNA having यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30s सब यूनिट ये 30s यूनिट है, IF3 है, और ये mRNA है जो कि पूरी स्लाइड में देखा था हमने। और सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पर IF2 फैक्टर और tRNF8 मिथाइनिन के लिए mRNA होता है, सबसे पहले tRNA होता है जिसके ऊपर USC एंटीकोडोन होता है। ये IF2 के साथ में इनिशिएशन फैक्टर के 2 के साथ में एक्टिवेट होकर के अमीनो एसिड के साथ बाइंड करके ये राइबोसोम की साइट की तरफ आता है, और
नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इनिशिएशन फैक्टर था पहले IF3 और 30 मिनट, और ये मैसेंजर RNA है, इसके AUG के ऊपर एंटी कोडोन UAC आकर के जुड़ता है। तो tRNA और mRNA के बीच में कोडोन एंटी कोडोन पेयरिंग होती है, और IF2 फैक्टर के साथ आकर के ये मिथाइनिन tRNA के साथ में जुड़ा हुआ 30 मिनट में आकर के अटैच हो जाता है। देन एट दिस पॉइंट द नेक्स्ट द 50 मिनट जो है GTP की सहायता से एक्टिवेट होकर के और 50 मिनट आगे इसके ऊपर लग जाती है, और IF2 फैक्टर जो इससे रिलीज हो जाता है, IF3 फैक्टर भी रिलीज होकर के अलग चला जाता है, और एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। 30 मिनट 50 मिनट दोनों मिल जाती तो ये 70 हो जाता है, और यहाँ पर mRNA लगा हुआ है, इसकी एक ग्रुप के अंदर एक tRNA FMET लगा हुआ है, और ये 50 मिनट लगी हुई है। GTP की सहायता से इसको एक्टिवेट किया गया है, तो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब इस असेंबली के अंदर जब ये सब असेंबल हो जाते हैं तो अमीनो एसिड साइड के ऊपर एक नया tRNA लेकर के, और tRNA अमीनो अम्ल को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत होता है। तो अगला जैसे मान लीजिए यहाँ पर CCA है, तो GGU करके tRNA जिसके ऊपर एंटीकोडोन GGU है, ये प्रोलीन को लेकर के mRNA के CCA के साथ में बाइंडिंग करने आता है, और ये अमीनो एसिड साइड पर आकर के फिट हो जाता है। इट मीन्स एक पेप्टिडाइल साइड के ऊपर पहले से tRNA लगा हुआ, दूसरा अमीनो एसिड साइड के ऊपर आकर के एक tRNA और लग जाता है। एक के पास मिथाइनिन है, दूसरे के पास में प्रोलीन है। अगली स्टेप में अगर आप देखें तो P और S साइड के बीच में दोनों ही tRNA आकर के स्थापित हो जाते हैं। P और S साइड के ऊपर 50 मिनट की और एंटीकोडोन कोडोन की पेयरिंग हो जाती है, और अब P और S साइड के ऊपर जो मिथाइनिन और प्रोलीन है, इनके बीच में जो अमीनो अम्ल हैं, इन दोनों अमीनो अम्लों के कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में CONH बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हम जो ही इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के द्वारा ये पूरा का पूरा पैर आगे खिसक जाता है, और जो एक खाली tRNA है अपने अमीनो अम्ल को मिथाइनिन जो था उसको प्रोलीन के साथ में जोड़ दिया इसने पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, और खुद बाहर की ओर निकल गया, और ये पूरा का पूरा सेट अमीनो एसिड साइड से पेप्टिडाइल साइड पर आ गया और अमीनो एसिड साइड खाली हो गई। अब अगला tRNA जो कि CGA, इसके आधार पर जो अगला tRNA होगा वो अपना अमीनो अम्ल लेकर के यहाँ पर उपस्थित होगा और आकर के अमीनो एसिड साइड के ऊपर जो है ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर से ही इलोंगेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो नेक्स्ट tRNA बेस पेयर विद नेक्स्ट कोडोन and peptidyl transferase catalyze the formation of peptide bond between the new amino acid by growing the peptide chain. Now serine containing mRNA tRNA जो है लेकर के यहाँ पर उपस्थित होता है, इस अमीनो एसिड साइड पर आकर अटैच हो जाता है, और प्रोलीन और सीरीन के बीच में फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के साथ ही अगेन राइबोसोम आगे की तरफ मूव कर जाता है। राइबोसोम आगे मूव करते ही जो प्रोलीन वाला जो tRNA होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है, ये बाहर निकल जाएगा, और जो एस साइड के ऊपर सीरीन सहित tRNA जो है वो पूरा का पूरा आकर के P साइड पेप्टिडाइल साइड पर आकर के एस्टेब्लिश हो जाएगा, और एस साइड फिर खाली हो जाएगी। अगली स्लाइड में देखेंगे अपन, ये जो है प्रोसेस जिसको हम इलोंगेशन कहते हैं। इलोंगेशन मतलब चेन का आगे से आगे अमीनो एसिड जुड़ते जा रहे हैं और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता जा रहा है। वंस अगेन द राइबोसोम शिफ्ट्स ओवर सो दैट द अनचेंज्ड tRNA is expelled and the tRNA with peptide chain occurs on the P साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया वो P साइड के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और पेप्टाइड चेन में वृद्धि होती जाती है। ये शिफ्टिंग जो है आगे बढ़ती जाती है और साथ साथ में पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता जाता है, और ये प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है। द प्रोसेस इज ऑल्सो रिलेटिवली एरर फ्री, ओनली वन मिस्टेक इज मेड एवरी 10,000 अमीनो एसिड्स फॉर लार्ज प्रोटीन्स ऑफ 1,000 अमीनो एसिड्स दैट वुड बी mean one wrong amino acid every 10 polypeptide. Here we can see how elongation process is continues. मैंने जैसा कि आपको बताया ये पूरा का पूरा सेट जो है वो P साइड पर आ जाता है, और P साइड पर ये तीनों अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, A साइड पुनः खाली हो जाती है, और अमीनो अम्ल की अमीनो एसिड साइड के ऊपर अगला tRNA अपना प्रोटीन अमीनो अम्ल लेकर के हाजिर हो जाता है, और ये प्रक्रिया
आगे बढ़ती जाती है और सीरीज के अंदर इसमें अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनती जाती है और एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता जाता है। जब ये प्रक्रिया अंत तक पहुंचती है, यहाँ पर एक टर्मिनेशन कोडोन आ जाता है जिसको हम यूए, यूएजी और यूजीए, ये 3 कोडोन ऐसे होते हैं जिनके आने के ऊपर कोई भी अमीनो अम्ल कोडित नहीं होता है और इसके लिए कोई भी टीआरएन नहीं होता है और इसीलिए इनको हम टर्मिनेशन कोडोन या अंतस्थ कोडोन भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को समापन करने का कार्य करते हैं और इन्हें अंतस्थ कोडोन का नाम भी दिया गया है। तो व्हेन ए टर्मिनेशन कोडोन एंटर्स द ए साइट, ट्रांसलेशन हाल्ट्स, और हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है बिकॉज देयर इज नो टीआरएनए एंड एंटीकोडोन दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दी एनी ऑफ दी स्टॉप कोडोन्स। तो इन स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई भी टीआरएनए या अमीनो अम्ल नहीं होता है जो कि इसको लेकर के यहाँ पर आए और इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया का समापन होने का कार्य यहाँ पर होता है। द रिलीज फैक्टर causes the translation complex to fall apart, that is cleaves the polypeptide from the final tRNA. Polypeptide product is now free to function in the cell. mRNA molecule is now available to the translated again. अगर और प्रोटीन की आवश्यकता है तो mRNA का मोलिक्यूल पुनः प्रोटीन की चेन बनाएगा, वो वापस जाकर के राइबोसोम से जुड़ेगा और सेम प्रक्रिया जो हमने देखी वो रिपीट होगी और एक के बाद एक राइबोसोम जो है वो इस पर अटैच होते जाएंगे। कई बार एक ही mRNA की चेन पर कई सारे राइबोसोम एक साथ जुड़ जाते हैं और इसे हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं, जिसके द्वारा एक ही साथ कई सारी प्रोटीन की चेन और हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर टर्मिनेशन के प्रोसेस को दिखाया गया है किस प्रकार से रिलीजिंग फैक्टर आता है और यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस की चेन के टर्मिनेशन का कारण बनता है, क्योंकि यूए जो है वो नॉनसेंस कोडोन है, टर्मिनेशन कोडोन है और बाकी सारे प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड के रूप में अमीनो अम्ल के साथ जुड़ते जाते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, ये हमने बात की थी प्रोकैरियोट के अंदर, लेकिन यूकैरियोट के ट्रांसलेशन में कुछ डिफरेंस होते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज वेरी सिमिलर टू दी प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, बट देयर आर फ्यू नोटेबल डिफरेंस आर देयर। यूकैरियोटिक mRNA do not contain sign de Lugano sequence. Instead, ribosomal subunit recognizes they bind to the 5' cape of the eukaryotic mRNAs. In other words, 5' can take the cape takes the place of cyanide Deligarno sequence and यूकैरियोट के अंदर जो मिथाइलिन होता है वो फॉर्माइल नहीं होता है और प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड के अंदर पहला जो अमीनो अम्ल होता है वो मिथाइलिन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ये फॉर्माइल मिथाइलिन होता है, उसको फॉर्माइल ग्रुप के साथ में लगा रहता है, जो कि यूकैरियोट्स में नहीं होता है। यूकैरियोट्स के अंदर कोई भी इनिशिएटर टीआरएनए नहीं होता है और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर कई सारे प्रोटीन के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि उसमें बताया गया कि उसमें 3 फैक्टर होते हैं, इसमें 10 फैक्टर होते हैं और ये सारे जो है प्रोटीन के सिंथेसिस को जो है कंप्लीट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर्स, जिसको हम कहते हैं कि कौन प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को हिंडर कर सकता है या रोक सकता है या उसके अंदर बाधा पहुंचा सकता है, तो उसके अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीसाइक्लिन्स, डेमिक्लोसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, ये सारे जो है बैक्टीरियल ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, बाइंडिंग को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं 30 यूनिट को और किसी प्रकार के अलाइनमेंट को चेंज करके और mRNA के कोडोन का मिसमैच करके और प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को डिस्टर्ब करते हैं, रोकते हैं। प्यूरोमाइसिन जो है वो अमीनो एसाइल टीआरएनए के जुड़ जाता है और पेप्टाइड चेन के इनहिबिशन के लिए जिम्मेदार होता है। क्लोराम्फेनिकोल ऑल्सो इनहिबिट्स प्रोकैरियोटिक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। Clindamycin and erythromycin binds irreversibly to the site on the 50th subunit of the ribosome, thus inhibits translocation. And diphtheria toxin also inactivates the eukaryotic elongation of factors that prevent translocation. प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस होकर के प्रोटीन का रिलीज होता है, तो उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं जिनको, तो है उसके अंदर ट्रिमिंग, कोवेलेंट अल्टरनेशंस, फोस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, हाइड्रोक्सिलाइलेशन, गामा कार्बोक्सिलेशन, आइसोप्रेनाइलेशन एंड फाइनली प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के पश्चात प्रोटीन के मॉडिफिकेशन के लिए काम में आते हैं। ट्रिमिंग रिमूव्स एक्सेस अमीनो एसिड्स, फोस्फोराइलेशन में एक्टिवेट और इनएक्टिवेट द प्रोटीन,
Glycosylation targets proteins to become a part of the plasma membrane or lysosomes or to be secreted out of the cell. Hydroxylation, such as is seen in the collagens, is required for acquiring the three-dimensional structure and for imparting strength. Defective proteins are destined for turnover are marked for the destruction of the attachment of ubiquitin protein. Proteins marked in this way are degraded by cellular components known as proteasome. अगर हम इसको समरी के रूप में देखें, ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है, इसके कुछ की पॉइंट का अध्ययन करें तो ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूजिंग द इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन द mRNA molecule. This process involves mRNA, tRNA, ribosomes. tRNA has unique structure that exposes anticodon, which binds to the codon on the mRNA, and the opposite end that binds to the specific amino acids. Binding of an amino acid to the tRNA is carried out by the enzyme called aminoacyl tRNA synthetase. The process is called as charging. Translation consists of three basic steps: initiation, elongation, and termination. Initiation involves the formation of ribosomes, mRNA, initiated tRNA complex. Elongation is the actual synthesis of polypeptide chain by formation of peptide bond between amino acids. Termination dissociates the translational complex and the releases the finally finished polypeptide chain. Each of these steps requires for the activity of specific set of protein factors in addition to the ribosome, tRNA and mRNA. So this is how all about the protein synthesis, that is the factors involved in protein synthesis where process is just start, that is initiation, then elongation. Initiation is the firstly the two amino acids are joined together to the ribosomal subunits mRNA. Finally amino acid get attached one by one, process is get elongated, chain becomes long and long, that becomes a long polypeptide, and finally there is nonsense codon, there is no amino acid, and there is termination of protein chain, and finally polypeptide is released.